ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ مچھل کپوارہ میں آرمی گڈ ول اسکول، تابناک مستقبل کی ضمانت۔ گولڈن کارڈ سہولیت سے مریض ہو رہے ہیں مستفید۔ نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن کے تحت پلوامہ میں ٹیلرنگ تربیت۔ ادھمپور کے دور دراز علاقوں میں خشک سالی سے نمٹنے کا منصوبہ۔ وادی میں والی بال ٹورنامنٹ نوجوان نسل کے لیے نئی دشا۔ سرحدی اضلاع میں تعلیمی اداروں کی کمی اور بنیادی ڈھانچے کے فقدان کے سبب یہاں کی نوجوان نسل کو تعلیم حاصل کرنے میں طرح طرح کے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔ ان مسائل کا حل فراہم کرتے ہوئے فوج جہاں قیام امن میں اپنا رول ادا کر رہی ہے، وہیں نوجوانوں اور قوم کے معماروں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ مچھل کپوارہ میں ایک اسکول قائم کیا گیا ہے جو گزشتہ 21 برسوں سے اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ فوج وادی کشمیر میں قیام امن کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے پیمانے پر اپنا رول ادا کر رہی ہے، جبکہ نوجوان نسل کو تعلیم سے آراستہ کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے اور سرحدی علاقوں پر خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے تاکہ یہاں کی نئی پود بھی دنیا کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کامیاب ہو سکے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت سرحدی ضلع کپواڑہ کے مچھل علاقے میں ایک اسکول قائم کیا گیا ہے جہاں قوم کا مستقبل پروان چڑھ رہا ہے۔ The school started in year 2001 and the school has been running for last 21 years. The school conducts class from nursery up to class 8th and a total of 114 children study as on date here. We have a few facilities for the children in terms of science lab, computer lab and library, and we have instituted boys hostel for the boys who are far-flung areas about 5 to 7 kilometers from the school, so they are not able to come regularly, so we have this boys hostel wherein they stay here and regularly they attend the school. لائن آف کنٹرول کے ساتھ آباد دیہات میں بچوں کو بنیادی سہولیات کے فقدان کے نتیجے میں تعلیم حاصل کرنے میں طرح طرح کی مشکلات درپیش ہیں۔ ان علاقوں میں کچھ ہی سرکاری اسکول ہیں۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھارتی فوج نے ضلع کپواڑہ کے مچھل سیکٹر کے رگون گاؤں میں آرمی گڈ ول اسکول قائم کیا ہے۔ اس اسکول میں فوج معیاری تعلیم اور کھیلوں کی سہولیات فراہم کرتی ہے تاکہ یہاں زیر تعلیم بچے امتحانات اور کھیلوں میں ضلعی سطح کے طلباء کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمیں جو یہاں پہ فیسلٹیز ہے، بہت سارے فیسلٹی ہے، یہ اسکول بہت ہی اچھا جو سہنا نے یہاں پہ اسکول کھلایا، اس سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے۔ ہمیں مشکل ہوتا ہے اسکول آنا، اس کے لیے بھی ایک ہاسٹل رکھا ہے، بوائز ہاسٹل، راجندر بوائز ہاسٹل۔ ہم اس میں 20 بچے رہتے ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں۔ وہاں پہ اچھا کھانا ملتا ہے، رات کو ہم وہیں بیٹھتے ہیں، صبح اسکول آتے ہیں۔ ہمیں اس یہ آسان کیا آنا، جو دور دور سے بچہ تھا ان کو بھی وہاں رکھتے ہیں، اور جو یہاں پہ یہ گیمز ہوتے ہیں یہ بھی کھلاتے ہیں۔ مچھل کے بچوں کے لیے سال 2001 میں یہ اسکول قائم کیا گیا اور گزشتہ 21 برسوں سے یہ یہاں کے بچوں کے مستقبل کو سنوار رہا ہے۔ نرسری سے 8ویں جماعت تک یہاں بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ اسکول میں کمپیوٹر کی تعلیم بھی بچوں کو دی جا رہی ہے۔ فوج کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ 100 سے 150 روپے ماہانہ فیس کے تحت بچوں کو تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ یہ بچہ جو یہاں پہ رہتا ہے جس کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نیٹ ورک فیسلٹی نہیں ہے، ہاں، تو اس کو ایسا بنایا جاتا ہے، ایسی شکشا دی جاتی ہے کہ یہ خود کو کمتر نہیں سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہاں میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اور بہت سارے بچے جو اس وقت گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ وہ آرمی اسکول سے پڑھ کے نکلے ہیں۔
आर्मी गुडविल स्कूल के तलबा काफी मुतमईन हैं क्योंकि स्कूल उन्हें बेहतरीन वसाइल फराहम करता है। वो सभी अफसर, डॉक्टर और दूसरे पेशेवर बनने की ख्वाहिश रखते हैं जो इन अलग थलग इलाकों में लोगों की मदद कर सकें। जिन तलबा का रोजाना की बुनियाद पर स्कूल आना मुमकिन नहीं है, उनके लिए तमाम सहूलियात के साथ हॉस्टल भी कायम किया गया है ताकि वो अपनी पढ़ाई पर सही तवज्जो दे सकें। आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके में इस स्कीम के तहत मरीजों की खासी तादाद मुस्तफ़ीद हो रही है, जबकि स्कीम के तहत उन्हें हर तरह की तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। पेश इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम बरसों पहले लॉन्च हो चुकी है। इस स्कीम से जम्मू कश्मीर के सभी अवाम को फायदा पहुंच रहा है। खासतौर पर खत इफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले कुंबे मुस्तफीद हो रहे हैं। सूबा जम्मू के पूंछ में गोल्ड कार्ड से आम मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि इस सहूलत से मरीजों को वक्त पर इलाज की सहूलत मैसर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम तकरीबन 10 दिन से हैं। हमारा ऑपरेशन हुआ तो उसमें भी ठीक रहा, कोई चीज़ हमने बाहर से नहीं खरीदी। गोल्डन कार्ड हमारा बना था, उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। ख़ास करके जो गरीब अवाम है, उस गरीब अवाम का इस गोल्डन कार्ड से बड़ा फ़ायदा है। कई लोग हैं जो कई सारी चीज़ें मुयस्सर नहीं कर पाते हैं, वक्त पे उनको पैसा नहीं होता है, तो इससे जो है गरीब अवाम को बड़ा फ़ायदा हुआ है। जम्मू कश्मीर के सभी लोग यानी पूरी आबादी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इंश्योरेंस कवर मिलता है। इस स्कीम के तहत मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती है। जिला अस्पताल पुंछ में जेर इलाज मरीजों की एक खासी तादाद गोल्डन कार्ड की सहूलत से मुस्तफीद हो रही है। अगर किसी के पास ये कार्ड दस्तयाब न हो तो अस्पताल में ऐसी सहूलत मौजूद रखी गई है जहां गोल्डन कार्ड को बनाया जा सकता है। मरीजों को इस कार्ड के तहत इलाज से लेकर अद्वियात, टेस्टिंग और जराही के लिए दरकार सामान तक मुफ्त सहूलियत फराहम की जाती है। लोग गोल्डन कार्ड के तहत मिलने वाली सेहत सहूलत पर हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सर, इधर गोल्डन कार्ड की तरफ से हमें बहुत फैसिलिटी मिली है। बाहर से कोई सामान नहीं लाना पड़ा है और छोटा मोटा बिल्कुल नेग्लिजिबल सामान जो होता है वो भी हमें अंदर से मिल रहा है। आपका कौन है यहाँ पे? हमारी मदर है सर, उनका ऑपरेशन हुआ है और जो भी सामान यहाँ पे लगा हुआ अंदर हॉस्पिटल के अंदर से मिला है, वो गोल्डन कार्ड की वजह से। मरकजी सरकार ने गोल्डन कार्ड की फराहमी को यकीनी बनाते हुए इसको सेहत के हवाले से मरीजों के लिए एक फायदेमंद जरिया बनाया है और इस कार्ड की मदद से गरीब मरीजों का मुफ्त या कम खर्चे पर इलाज हो रहा है। जिला पुंछ में इस स्कीम की अमल आवरी और जमीनी सतह पर लोगों को सेहत सहूलियात का बराह रास्त फायदा मिल रहा है। ये सेहत स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिससे जम्मू व कश्मीर का हर एक बाशिंदा मुस्तफीद हो रहा है। अभी तक हमारे यहाँ लगभग 2382 पेशेंट हैं जिनको हमने TMS पे रजिस्टर किया, जिनको हमने फ़ायदा पहुँचवाया है। पर डे हमारा 10 से 15 रहता है और लास्ट मंथ में हमने जो आयुष्मान के अंडर आते हैं IPD, उनमें 285 केस रजिस्टर किए। उनमें 167 केस हमारे रजिस्टर हुए हैं जिनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा पहुँचाया है। उसके बाद डायलिसिस है, यहाँ पे डायलिसिस में पर डे 5 से 6 पेशेंट्स को हम डायलिसिस करवाते हैं। जम्मू कश्मीर के हर फर्द जिसका इस स्कीम में इंदराज होगा, बीमार होने पर उसे 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। इसे डॉक्टर की फीस से लेकर दवाओं तक और ऑपरेशन से लेकर दीगर तिब्बी खिदमात मुफ्त में हासिल होंगी। जम्मू कश्मीर की खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके लिए रोजगार के नए वसाइल पैदा करने के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत हुनर की तरबियत का सिलसिला शुरू किया गया है।
इस स्कीम के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में ख़वातीन को टेलरिंग एंड कटिंग की तरबियत दी जा रही है। वादी कश्मीर की ख़वातीन में रोजगार पैदा करने और उन्हें खुद कफील बनाने के लिए नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में हुनरमंदी की तरबियत शुरू की है। तरबियती प्रोग्राम के तहत जिले की ख़वातीन को टेलरिंग और दीगर दस्तकारी की तरबियत फराहम की जा रही है। हम दिन में 1 सूट 2 सूट सिलाई करते हैं। 300 का 1 सूट है। 1 सूट की सिलाई 300 में लेते हैं। 2 सूट की सिलाई 600 हम दिन में कमाते हैं अच्छी तरह। इस 600 रुपये से हम अच्छी तरह अपना खर्चा निभाते हैं। इसलिए हम NRLM से शुक्रगुजार है, क्योंकि इसने हमें एक ऐसी स्कीम दी जिससे हम बेरोजगार नहीं रह गए, हम रोजगार रह गए। हम अपना खर्चा वर्चा सब उठाते हैं इसी से। टेलरिंग एंड कटिंग के शोबे में तरबियत फराहम करने के लिए तकरीबन 15 से 20 ख़वातीन और लड़कियों ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी तश्कील दिया है। ये इक़दाम JK रूरल लिवलीहुड मिशन ने शुरू किया है, जिसने इलाके की बेरोजगार ख़वातीन को जरिए माश का एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। NRLM ने हमें मशीनें दी हैं, 6-6, 7-7 मशीनें दी हैं कि उन बहनों को भी रोजगार मिले। अगर वो लोग सीखेंगे, 3 महीने सीखेंगे, 4 महीने सीखेंगे, वो भी अपना रोजगार अच्छे से चलाएंगी। एटलीस्ट अपना खर्चा, क्योंकि औरतों को भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो अपना खर्चा भी बहुत सारे अच्छे तरीके से चलाएंगे। वादी कश्मीर में घरेलू सतह पर ख़वातीन और बच्चियों में टेलरिंग सीखने का रुझान बढ़ गया है। घरेलू सतह पर ज्यादातर ख़वातीन अपने मोहल्लों या इलाकों में तमाम उम्र की ख़वातीन और बच्चियों के कपड़े सीती हैं। एक घरेलू खातून दर्जन दिन में 1 से 3 सूट सिलाई कर लेती है। अब हुकूमत इस पेशे को अपना ताउन फराहम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा ख़वातीन तक ये हुनर पहुँचे और वो बाइख्तियार बन सकें। अगर देखा जाएगा जो आज से पहले 5 साल जो सूरत हाल यहाँ पे जो औरतें इस उम्मीद के साथ जुड़ी हुई है, NRLM के साथ जुड़ी हुई है, इनका जो आज से पहले 5 साल जो इनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा पीछे थे। इनको ये नोहाव नहीं था कि हमें जो हमारे पास अगर कुछ पैसा है इसको क्या करे, कहाँ करे, किस में हम यूटिलाइज करें। आज माशाअल्लाह शुक्र खुदा का इनके पास पूरा नोहाव है कि अगर हमारे पास कुछ पैसा आता है, चाहे वो गवर्नमेंट की एंड से आता है, चाहे ये इनका अपनी सेविंग है, इनको पता है कि हमें कहाँ पे किस तरह से लाइवलीहुड जनरेट करना है, जिससे हमें अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होके हम अपने मतलब जो परिवार है उनको कैसे आगे बढ़ाए, उनको कैसे पाले। हुनर साजी की तरबियत हासिल करके इस तरह उनको घर बैठकर इजाफी आमदनी हो जाती है, जिससे वो अपने माली मसाइल को कम कर लेती हैं। बहुत सी घरेलू ख़वातीन टेलर्स इस आमदनी से अपनी ज़रूरियात की चीजें और दीगर घरेलू सामान खरीद लेती हैं, जबकि ज्यादातर ख़वातीन लेडीज टेलर्स से अपने कपड़ों की सिलाई को तरजीह देती हैं, क्योंकि लेडीज टेलर को ख़वातीन और बच्चियों को अपने कपड़ों का नाप देने और सिलाने में आसानी होती है। ये रुझान कश्मीर में तेजी से फैल रहा है। जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी, दूर दराज इलाकों और खुश्क साली वाले इलाकों में सिंचाई, पीने और दीगर ज़रूरियात के लिए दरकार पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत की एक स्कीम के तहत तालाब तामीर किए जा रहे हैं ताकि बारिशों का पानी जमा किया जा सके, जिसे बाद अज़ा ज़रई और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और दूर दराज खुश्क साली वाले इलाकों में सिंचाई और पीने के लिए दरकार पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की एक स्कीम के तहत वाटर शेड या तालाब तामीर किए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी IWMP के तहत जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में उन इलाकों में सैराबी पानी की फराहमी यकीनी बन रही है जहां सिंचाई के लिए पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं थी। जो तालाब बना है जो गवर्नमेंट की बहुत मेहरबानी है, हमें पानी की बहुत परेशानी थी, इधर पानी नहीं मिलता था, पशु हमारे जो ऐसे ही रहते थे प्यासे, अब पानी की वजह से उनको पानी मिल रहा है
और जंगल के जानवर भी पी रहे हैं, जहाँ से पंछी हैं, मोर हैं और पंछी हैं, सब कुछ है इधर, लेकिन पानी नहीं मिलता था, अब वो भी पी रहे हैं पानी, और हमें बरतने के लिए पानी मिल रहा है। कोई कपड़े धोने हैं वो भी धो सकते हैं, पशुओं को, अपने माल मवेशी को पिला सकते हैं। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हुकूमत हिंद की स्कीम है, जिसके तहत बारिशों का पानी जखीरा करने के लिए तालाब बनाए जा रहे हैं ताकि खुश्क साली जैसे सूरत-हाल से बरवक्त निपटा जा सके। जिला उधमपुर के जगानू ब्लॉक के थानाऊ पंचायत में वाटरशेड या तालाब की तामीर से मकामी लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। मकामी लोग माशी तौर पर इतने मजबूत नहीं थे कि वो ज़रई जमीन को सैराब करने के लिए एग्रीकल्चर ट्यूबवेल खोद सकें। और ये हमारा जो तालाब बना है, जिसके जो आगे आने वाले समय में फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो भी हमारा जो बारिश का पानी आता है तो इसमें जो इकट्ठा हो सकता है, तो इसलिए अभी जो हमारा जो सूखा पड़ रहा है अभी इन महीनों में, तो जो हमारे माल मवेशी या जो भी और भी कोई पानी की सुविधा, वो उसमें बड़ी परेशानी आ रही है हमें। तो जो आने वाले समय में ये बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है बरसात के महीने में, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वाटरशेड की तामीर से कबल इस इलाके के किसानों की खेतीबाड़ी का इन्हिसार बारिशों पर था, ताहम अब वो यहाँ सैराबी पानी की सहूलत फराहम होने के बाद दोहरी फसल उगा पाते हैं। यहाँ के किसान मौसमी फसलों मकई और गंदुम की ही खेती किया करते थे और बाज़ औक़ात उन्हें खुश्कसाली की वजह से नुकसान से भी दो-चार होना पड़ता था, लेकिन आबपाशी की सहूलत मैसर होने से उनकी जिंदगी ही बदल रही है। पानी हम सबकी ज़रूरत है, खासकर हम जैसे गांव में रहते हैं तो गांव में मवेशी भी काफ़ी मवेशी भी पाए जाते हैं, तो मवेशियों के लिए भी पानी की काफ़ी किल्लत रहती है। तो उस सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा है कि इस साल हम मैक्सिमम जो पांड हैं हम इसमें रेनोवेट करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि थ्रोआ में बनाए हैं, और एक जैसे सरकार की एक स्कीम नई आई है कि अमृत सरोवर, उसमें भी हमने कम से कम 9 पांड जो है बड़े बड़े पांड आइडेंटिफाई किए हैं, जो 1 कनाल से लेकर 3 कनाल तक भी हैं, उनको हम रेनोवेट भी करेंगे और कुछ नए भी बनाएंगे। मरकजी हुकूमत ने इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकरीबन 39.07 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर मुहित 8,214 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड बनाने वाले जुज WDCPMKSY के तौर पर जम कर दिया गया था। वादी कश्मीर में वॉलीबॉल टूर्नामेंट नौजवान नस्ल और उभरते खिलाड़ियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। जहां इन टूर्नामेंट्स में यहां के नौजवान अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं वॉलीबॉल खेल को फरोग भी दिया जा रहा है। वादी कश्मीर में दीगर खेलों के साथ साथ अब यहाँ नौजवान नस्ल वॉलीबॉल खेलने में भी बड़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं, जबकि इसके फरोग के लिए कई स्पोर्ट्स क्लब्स काफी सरगर्म हैं। हाल ही में वादी कश्मीर में वॉलीबॉल के कई टूर्नामेंट मुनाकिद किए गए, जिसमें नौजवानों की खासी तादाद ने शिरकत की और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। जो यहाँ पे जो हुसैन ये टूर्नामेंट है, जो यहाँ पे चैंपियनशिप निकली है, ये वाली चैंपियनशिप से इससे जो यूथ भी है वो भी एक किस्म के क्या ड्रग्स से अलग रहे इससे, और आगे हम प्रमोट भी कर सकते हैं इसको, जो वॉलीबॉल है अच्छी तरह से प्रमोट भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारे यहाँ से बच्चे भी निकलते हैं वो भी अच्छे निकले, ताकि वो भी इंटरनेशनल या नेशनल ज्वाइन करे पहले, फिर मैं भी इंटरनेशनल भी ज्वाइन करे, ताकि ये अच्छा स्टेप है यहाँ का। और यहाँ आने में हमें बहुत मज़ा भी आया, खेलते खेलते मज़ा भी आया यहाँ पे। हाल ही में श्रीनगर में एक टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाली टीमों ने शिरकत की। मुकाबलों के दौरान नौजवानों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया और ये साबित कर दिया कि वो क्रिकेट, फुटबॉल के साथ साथ वॉलीबॉल में भी काफी महारत रखते हैं। जो ये
والی بال ہے اس کو یہ بہت اچھی گیم ہے اور بہت کم ٹائم میں اس کو کھیلا جا سکتا ہے. اور جو ابھی جو یوتھ ہیں یا جو لوگ ہیں اگر وہ والی بال کی طرف آئے گے تو بہت اچھی گیم ہے یہ, اور اس میں بہت آگے جا کر بھی بہت کمپٹیشن ہے اس میں. اس منعقدہ ٹورنامنٹ کے دوران معزز شہریوں کے علاوہ کم عمر کھلاڑیوں نے ٹورنامنٹ کے میچوں کو دیکھا اور خوب محظوظ ہوئے. اس طرح کے ٹورنامنٹ نوجوانوں کو والی بال کھیل کی طرف راغب کر رہے ہیں, جبکہ آرگنائزرز بھی اس کھیل کو فروغ دینے میں کافی کوشاں ہیں. جیسے کہ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ جو کرکٹ ہے آلموسٹ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں کھیلا جاتا ہے. اب وہ لیگ, یہ لیگ, فٹ بال کی آئی لیگ یہاں پہ لیگ ہوتی ہے, کونسل کرتا ہے, دوسرے کلبز کو آرگنائز کرتا ہے, الگ الگ گراؤنڈز پہ ہوتا ہے. تو والی بال کے اتنے سارے ٹورنامنٹس نہیں ہوتے ہیں. تو ہم نے بھی سوچا تھوڑا, ہمارے پاس یہاں پہ والی بال کا کورٹ تھا تو ہم نے انیشیٹو لیا, ہم نے سوچا کہ ہم اس کو کریں تاکہ یہ جو والی بال ہے اولمپک ایونٹ ہے, ایشین گیمز میں بھی ہے, یہ تھوڑا پروموٹ ہو جائے. وادی کشمیر میں مثبت سرگرمیوں اور نوجوان نسل کو منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھنے کے لیے کھیل سرگرمیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا؟ آپ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.